Hello everyone, good afternoon. I hope you are fine. Today we are starting with our next topic of class 11, motion. We started already. So in last class we discussed their speed and velocity. Then today we will discuss their acceleration. Okay, what is acceleration, beta? Then in last class we discuss here that is speed and velocity. Okay, before this one we discussed their distance and displacement. Then distance displacement is a path covered by any object. So if we are taking their total path covered by any object from initial to final, then total we will call it distance, and out of all paths then we will want to find out shortest path, then we will call it displacement. शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट, छोटे से छोटा रास्ता जो हम एक डेस्टिनेशन तक जाने के लिए हम यूज करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं. सो डिस्टेंस बाय टाइम, इफ वी आर टेकिंग दिस वन पाथ कंपेयरिंग विद आवर टाइम कि कितने टाइम में पाथ कवर कर रहे हैं, हाउ मच टाइम इज टेकन टू कवरिंग दिस पाथ शॉर्टेस्ट एंड टोटल, देन वी विल कॉल इट स्पीड एंड वेलोसिटी. अगर टोटल पाथ की अगर हम बात कर रहे हैं, टोटल पाथ पर इन टाइम, देन वी विल कॉल इट speed, and shortest path displacement with respect to time we will take, then we will call it velocity. After that both are having meter per second unit, then it is scalar quantity, it is vector quantity. Scalar and vector also I told you, scalar those quantity in which we can find only magnitude, and vector those quantity in which we can find their magnitude plus as well as the direction. Okay, so slope of the time graph, speed and slope, this one today we will discuss about slope. What is slope of any graph? Slope कैसे find करते? Okay, then after that we will discuss the acceleration. Acceleration क्या होती है बेटा? That is change in the velocity. Okay, how much change in the velocity? Change in velocity, change in velocity, change in velocity per unit time, per unit time is known as acceleration, is known as acceleration. Okay, कि वेलोसिटी अगर चेंज, वेलोसिटी एक्सेलरेशन, वेलोसिटी के अंदर अगर वेरिएशन हो रहा है, हाउ मच चेंज इन द वेलोसिटी वी विल टेक प्लेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देन वी विल कॉल इट एक्सेलरेशन. बॉडी क्या कर रही है? एक्सेलरेट कर रही है. अगर वेलोसिटी में कोई चेंज ही नहीं हो रहा, दैट इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी. अगर इनिशियली कोई बॉडी 3 मीटर पर सेकंड के साथ मूव कर रही है, देन आफ्टर दैट सम टाइम देन इट्स वेलोसिटी ओनली विल रिमेन 3 मीटर पर सेकंड ओनली, कि वेलोसिटी के अंदर कोई वेरिएशन ही नहीं हो रहा है, इसी वेलोसिटी के साथ वो मूव करती चल रही है. तो कांस्टेंट वेलोसिटी के केस में एक्सेलरेशन हमारी क्या होती है? जीरो होती है, कि बॉडी एक्सेलरेट ही नहीं कर रही, कोई चेंज ही नहीं आ रहा एक्सेलरेशन के अंदर, तो वेलोसिटी के अंदर तो एक्सेलरेशन क्या रहेगी? उसकी कांस्टेंट रहेगी. सो acceleration can be zero only if there no change in the velocity. Velocity will remain constant, then acceleration will be equal to zero. For the acceleration there should be change in the velocity. acceleration के लिए क्या होना चाहिए? इसके अंदर चेंज होना चाहिए. वेलोसिटी अगर वेरी करेगी तो ही क्या होगा? हमारा एक्सेलरेशन होता है. फॉर एग्जांपल, इनिशियली दैट बॉडी इज देयर मूविंग विद सम वेलोसिटी u, देन आफ्टर सम टाइम इट्स वेलोसिटी बिकम्स v. ओके, कि कुछ टाइम के बाद क्या है? इसकी वेलोसिटी v में चेंज होगी. तो कितना चेंज आया? फाइनल माइनस इनिशियली. सो हियर a we can write there how much change in the acceleration. a we can write there change in velocity, change in velocity per unit time is known as the acceleration. So how much change there? Final minus final velocity minus initial velocity. This one equal to divide by time. तो फाइनली वेलोसिटी क्या हुई इसकी? v, फाइनल वेलोसिटी v minus initial velocity u divide by time. So this one will become our acceleration. A equal to v minus u by t. This one will be our acceleration. Change अगर चेंज नहीं हो रहा, कि इनिशियली भी हमारी u है, आफ्टर सम टाइम u also will be there, अगर हम दोनों में चेंज निकाल रहे तो चेंज क्या होगा? u minus u by t. So this one cancel out, तो हमारे पास a क्या आता है? आपका जीरो. अब ये तो आपकी वेलोसिटी होगी. यूनिट हाउ यू कैन राइट देयर? सो एसआई यूनिट ऑफ दिस वन, SI unit
will be equal to, that is change in velocity. Velocity की यूनिट क्या रहती है? मीटर पर सेकेंड. इट्स यूनिट इज इक्वल टू हियर मीटर पर सेकेंड. ओके, दैट इज यूनिट मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाय अगेन सेकेंड. सो मीटर पर सेकेंड, देन वी कैन राइट देयर सेकेंड स्क्वायर माइनस स्क्वायर. सो यूनिट क्या रहेगी? मीटर सेकेंड माइनस 2. डिपेंड्स ऑन द वेलोसिटी. किस पे डिपेंड करता है? वेलोसिटी पे डिपेंड करता है. वेलोसिटी हमारी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है. ओके, वेलोसिटी इज आवर वेक्टर क्वांटिटी. दैट्स व्हाई this one, your acceleration also will become our vector quantity. Okay, so it is our vector quantity. It is vector quantity, means in that case we can find their direction as well as the magnitude. So we can write their acceleration is a change in velocity per unit time, that is known as the acceleration. If variation will be take place, then their acceleration will be there, otherwise it will become zero only. Okay, after that, that acceleration can be, motion can be uniform and can be non uniform. तो हमारी वेलोसिटी भी, स्पीड और वेलोसिटी को भी हम क्या है, दो तरीके से डिवाइड करते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड. यूनिफॉर्म स्पीड बेटा, दैट इज अ डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट वी विल कॉल इट यूनिफॉर्म स्पीड. एंड योर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन वी विल कॉल इट non-uniform speed. Okay, same for the uniform acceleration. Non-uniform acceleration, change in the velocity will take place in equal interval of time, it will remain same ratio, then we will call it the uniform acceleration. And if body is moving with unequal interval of the velocity, कि हर एक जो है इनिशियली बॉडी क्या 3 मीटर पर सेकंड के साथ मूव करी, देन 4 के साथ, देन 6 के साथ, देन 10 के साथ, ऐसे जो रेशियो आ रहा है वो क्या आ रहा है? डिफरेंट आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देन वी विल कॉल इट अ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. सो फॉर दिस स्पीड वी आर कॉलिंग इट यूनिफॉर्म वेलोसिटी या यूनिफॉर्म स्पीड. वी कैन राइट देयर यूनिफॉर्म स्पीड, देन वी कैन राइट देयर इक्वल इंटरवल, equal distance in equal interval of time, is known as uniform speed. ओके, इसको क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म स्पीड बोलते हैं. नॉन यूनिफॉर्म स्पीड मींस, कहने का मीनिंग क्या है कि बॉडी यहाँ से यहाँ तक जा रही है. सो दिस वन डिस्टेंस विल बी रिमेन सेम, 3 मीटर डिस्टेंस विद इन 1 सेकेंड ट्रेवल. नेक्स्ट अगेन 3 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी विद इन 1 सेकेंड. नेक्स्ट 3 मीटर अगेन फॉर 1 सेकेंड. नेक्स्ट 3 मीटर अगेन फॉर दी 1 सेकेंड. कि मीन्स हर एक जो डिस्टेंस है वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के साथ क्या कर रहा है, वो बॉडी ट्रेवल कर रही है. कि क्या है, 3 मीटर फिर से 1 सेकंड में ट्रेवल किया, नेक्स्ट 3 फिर से 1 सेकंड में. इस तरीके से हर एक डिस्टेंस इक्वल है और इक्वल इंटरवल में ही वो कवर कर रहा है. देन वी विल कॉल इट यूनिफॉर्म स्पीड, यू कैन कॉल इट यूनिफॉर्म मोशन. ओके, सो हियर नेक्स्ट हियर नॉन uniform speed. If unequal distance traveled by any object in unequal interval is called non-uniform speed. What? Non-uniform speed. Okay, for example, body is going from initial to final, that is destination. कि 1 सेकंड के अंदर वो ट्रेवल करी थी 3 मीटर. नेक्स्ट उसने 5 सेकंड में ट्रेवल किया फिर से 3 मीटर. नेक्स्ट उसने 10 सेकंड के अंदर जो ट्रेवल किया बेटा वो दैट इज ट्रेवलिंग योर 5 मीटर डिस्टेंस. ओके, नाउ नेक्स्ट ईयर अगेन 10 सेकंड डिस्टेंस में ट्रेवल किया 6 मीटर. सो नेक्स्ट ईयर 20 सेकंड में ट्रेवल किया उसने 10 मीटर. तो ये क्या है आपका अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टाइम है, 10 मीटर 15 मीटर. तो क्या है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द
पाथ है कि जो ऑब्जेक्ट है वो डिफरेंट, 1 सेकंड में उसने 10 मीटर ट्रेवल किया है, नेक्स्ट 5 सेकंड में उसने 3 मीटर ट्रेवल किया, नेक्स्ट 10 सेकंड में 5 मीटर, मींस अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पाथ with the unequal distribution of the time, then we will call it the uniform speed. अगर आपका टाइम इंटरवल सेम है बट क्या है पाथ डिफरेंट है कि हर एक सेकंड में वो क्या कर रहा है, पाथ चेंज कर रहा है, 3 मीटर ट्रेवल किया, फिर 5, फिर 10, फिर 15, फिर 17, फिर 19, उसको भी हम क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड बोलेंगे, क्योंकि क्या है सिमेट्रिक वे में ट्रेवल नहीं कर रहा, दैट इज नॉन यूनिफॉर्म। एंड इक्वल डिस्टेंस अगर इक्वल टाइम में, अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर वो ट्रेवल करेगा, देन वी विल कॉल इट यूनिफॉर्म स्पीड। Okay, I hope you understood better till here. Now we discuss their different factors. First I will discuss their distance, then displacement, after that discuss their speed, then velocity, then acceleration. This topic we discussed already. Then after that we will discuss their graph. Okay, graphically how we can represent these terms on graph. So in case of the xy graph, कोई हम x और y graph बना रहे हैं, let here we are taking this one graph, xy graph. So on this one x and y component, if we are drawing any line parallel to the x axis, this one line is indicating that your x is changing but y is constant. तो ये लाइन, ये स्ट्रेट लाइन क्या इंडिकेट कर रही है, y इक्वल टू constant term. Okay, any line we are representing like this one, that is a parallel to x axis and acting on the y, then it means your y is a remain constant. y की वैल्यू क्या है, इसके लिए constant है, but x क्या कर रहा है, vary कर रहा है. Same like this one, x and y graph we are taking, x और y we are graph taking, any line we are drawing that is parallel to the y axis, that means your x is your constant. x क्या कर रहा है यहाँ पे, sorry, y x is constant and y is varying. y की वैल्यू क्या करती जा रही है, इंक्रीज करती जा रही है, बट x क्या हमारा यहाँ पे constant वैल्यू है. ओके, एनी ग्राफ वी आर ड्रॉइंग लाइक दिस वन, एक्स वाई ग्राफ के अंदर हम कोई भी लाइन ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये लाइन क्या इंडिकेट कर रही है, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y. जितना x में वेरिएशन हो रहा है उतना ही क्या है, y में वेरिएशन हो रहा है. जितना x की y की वैल्यू चेंज कर रही है, x की वैल्यू भी चेंज कर रही है. मींस अगर x इंक्रीज कर रहा है तो y भी इंक्रीज कर रहा है, y, तो दैट मींस वी कैन से x विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी y. ओके, नाउ नेक्स्ट इफ वी आर इंडिकेटिंग एनी लाइन इन एक्स वाई ग्राफ या डिक्रीजिंग ऑर्डर, ऐसे अगर हम ड्रॉ कर रहे हैं तो इसका मीनिंग क्या होता है, x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी y. अगर x इंक्रीज करेगा तो y डिक्रीज करेगा, y डिक्रीज करेगा तो x क्या है, इंक्रीज करेगा. दैट इज ग्राफ इंडिकेटिंग दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल. तो ये थोड़े से सिंपल से ग्राफ है जो हमारा यूज होगा. नाउ आफ्टर दैट वी विल फाइंड देयर टू फैक्टर्स यूजिंग दिस ग्राफ, कि कोई भी अगर ग्राफ ऐसे इंडिकेट करते हैं तो उन लाइंस, जो लाइन हम उस ग्राफ के अंदर ड्रॉ कर रहे हैं, उनको मैथमेटिकली उनकी वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं. ओके, हाउ यू कैन फाइंड मैथमेटिकल वैल्यू ऑफ दीज लाइंस व्हिच वी आर ड्रॉइंग इन अ ग्राफ. Okay, that graph can be between your distance time graph, can be between your velocity time graph, can be acceleration time graph. क्योंकि यही फैक्टर हम रीड करें, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी एंड टाइम एक्सेलरेशन. तो इन्हीं क्वांटिटीज का क्या है, टाइम के साथ हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, और ग्राफ ड्रॉ अगर हम कर रहे हैं तो क्या क्या क्वांटिटी हम कैसे फाइंड कर सकते हैं इफ वी आर ड्रॉइंग दिस वन. सो लेट अस सी दिस वन. फर्स्ट वन ग्राफ, स्लोप ऑफ एनी ग्राफ, स्लोप ऑफ ग्राफ, एसटी ग्राफ. ओके, एसटी ग्राफ का मीनिंग क्या है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस टाइम ग्राफ. क्लियर? एनी ग्राफ वी आर टेकिंग हियर, देन this one ST graph we are taking here, this one. Now if we are indicating any, we are drawing any curve in this graph, इस ग्राफ के अंदर कोई कर्व हमने इंडिकेट की है, लेट फ्रॉम A to B कर्व we are taking, तो यहाँ से यहाँ तक का क्या हमें स्लोप अगर फाइंड करना है, then how you can find slope of this one graph, then slope always, remember this one, slope always will be equal to change along y-axis divided by change along
x axis. Okay, this one we can write there y2 minus y1, change along y axis. Y axis means इसके along. ओके इसके अलोंग हमारा डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन कुछ भी हो सकता है. तो y के अंदर जो भी क्वांटिटी होगी उनके अलोंग चेंज, डिवाइड बाय चेंज अलोंग x एक्सिस मींस चेंज मींस दो पॉइंट के बीच का चेंज, फाइनल माइनस इनिशियल. वी कैन राइट देयर x2 माइनस x1. अब x के अलोंग क्या, अगर टाइम है तो क्या हो जाएगा, टाइम के अलोंग कितना चेंज. सो ए बी पॉइंट कर्व वी आर टेकिंग, then along this one we can write there s1, along b1 point then we are taking s2, along a that is t1, and along this one that we are taking t2. clear. तो इस ग्राफ के अंदर हमने क्या है, दो पॉइंट्स ले रखे हैं, देन दिस वन, एंड कर्व क्या हमारी ए से बी तक, ए टू बी कर्व इज देयर. तो इस कर्व के बीच का क्या हमें स्लोप फाइंड करना है. तो आई टोल्ड यू फॉर्मूला ऑफ स्लोप ऑफ एनी एक्स वाई ग्राफ अगर कोई गिवन है तो उसके अंदर क्या होता है, स्लोप फाइंड करने के लिए हमें कितना चेंज आ रहा है वाई के लोग, कितना चेंज आ रहा है हमारा एक्स के लोग, दोनों का रेशियो हमें क्या देगा, स्लोप देगा. ओके सो अलोंग दिस वन, स्लोप ऑफ दिस वन, स्लोप ऑफ ए बी कर्व. ग्राफ के अंदर हम कौन सी कर्व यूज कर रहे हैं, ए बी कर्व वी आर यूजिंग. सो इन दिस वन कर्व वी कैन राइट देयर s2 माइनस s1, क्योंकि चेंज अलोंग y एक्सिस, तो y के अलोंग हमारा क्या है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट कितना चेंज आया, फाइनल माइनस इनिशियल, s2 माइनस s1, डिवाइड बाय चेंज अलोंग आवर x एक्सिस. x के अलोंग क्या हमारा टाइम है, सो हियर वी कैन राइट देयर t2 माइनस t1. clear. So this one ratio we can write there here, that change along x to y, that change in the distance, displacement divide by time. अगर distance की हम बात कर रहे हैं then we will call it speed. It will be equal to speed. अगर that displacement will be there then we can call it velocity. तो अगर ग्राफ की हेल्प से st ग्राफ गिवन है तो कह रहा है कि स्लोप, तो स्लोप हमेशा st ग्राफ का हमें क्या देगा, स्पीड और वेलोसिटी देगा. अगर आपका क्या है, here we can write their slope in st graph always will be equal to our velocity या फिर speed. क्लियर. अगर आपको क्वेश्चन में ग्राफ गिवन है तो कह रहा है कि फाइंड देयर स्पीड एंड वेलोसिटी, वेलोसिटी और स्पीड फाइंड करो. तो कैसे फाइंड करेंगे, उसका स्लोप निकाल देंगे. स्लोप की वैल्यू जो भी होगी आपकी वो किसके इक्वल होगी, हमारी वेलोसिटी और स्पीड के इक्वल होगी. अपोजिट भी पूछ सकता है कि वो फाइंड करो कि व्हाट इज द स्लोप ऑफ एसटी ग्राफ. स्लोप क्या रहेगा एसटी ग्राफ का, तो क्या होता है, स्पीड एंड वेलोसिटी होता है. इसी के अंदर सेकंड फैक्टर क्या आता है, एरिया अंडर द कर्व. ओके एरिया अंडर द कर्व क्या होगा, दिस इनटू दिस. अब दिस इनटू दिस क्या होगा इसके अंदर, दिस इनटू दिस तो क्या होगा, अननोन टर्म होगी. डिस्टेंस इनटू टाइम तो कोई फैक्टर ही नहीं होता. सो एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व किसके अंदर, एसटी ग्राफ के अंदर. एसटी ग्राफ के अंदर एरिया अंडर द कर्व इन एसटी ग्राफ, that is not possible. This is your not possible situation कि एसटी ग्राफ के अंदर हम ये कंडीशन अप्लाई कर ही नहीं सकते एरिया अंडर द कर्व. ये सिर्फ किसके है, स्लोप किसके अंदर, एसटी ग्राफ के अंदर सिर्फ क्या निकलता, स्लोप निकलता, और वो हमें क्या देता है, स्पीड और वेलोसिटी देता है. नेक्स्ट यूर ग्राफ फॉर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ग्राफ वीटी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ. ओके वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम यूज कर रहे हैं वीटी ग्राफ इफ यू आर यूजिंग. तो इस केस में बेटा टू फैक्टर्स वी कैन ड्रॉ हियर. Here your VT meter per second and T is our time in second. Clear. Any curve we are using, let here this one curve we are using, then here along this one point A and this one point B and this curve we are taking this one. इस curve के along हमारे पास value V1 and along this one your V2 and along this one your T1
and along T2. This curve is taken. Then in VT graph, slope of velocity time graph will be equal to, I told ना स्लोप किसी भी ग्राफ का अगर स्लोप फाइंड करना तो हमेशा क्या होता है, चेंज अलोंग y बाई x. तो y के अलोंग कितना चेंज आ रहा है हमारा, v2 माइनस v1. ये y के अलोंग है. चेंज अलोंग x एक्सिस, तो x के अलोंग कितना चेंज आया, t2 माइनस t1. ओके, एंड v2 बाई v1, v2 माइनस v2 एंड t2 माइनस t2, एंड दिस वन रेशियो वी कैन राइट इट, क्या बोलते हैं इस रेशियो को, एक्सेलरेशन. I hope you understood. So we can write there acceleration equal to slope of VT graph. तो वेलोसिटी टाइम के ग्राफ के अंदर अगर हम स्लोप निकालेंगे तो हमेशा क्या मिलेगी, एक्सेलरेशन मिलेगी. इसी ग्राफ के अगर अंदर अगर हम एरिया अंडर द कर्व निकाल रहे हैं, बट एरिया अंडर द कर्व निकाल रहे हैं, एरिया अंडर द कर्व, विच कर्व, ए बी कर्व. क्या हमारे पास ए बी कर्व, ये वाली कर्व है. इसके नीचे का अगर हम एरिया निकालेंगे तो वो एरिया किसके इक्वल होगा, दिस साइड इंटू दिस साइड, मीन्स वेलोसिटी इंटू टाइम. ओके, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय इनटू चेंज इन टाइम. तो वेलोसिटी इनटू टाइम क्या देगा हमें, हमेशा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट. सो दैट इज इक्वल टू आवर डिस्प्लेसमेंट. अगर आपको क्या है, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी है बीटी ग्राफ के अंदर, तो उस ग्राफ का क्या, उस ग्राफ का क्या निकाल देंगे हम, एरिया निकाल देंगे. उसके नीचे का जितना भी एरिया आएगा वो किसके इक्वल आएगा, हमारा डिस्प्लेसमेंट के अंदर आएगा. Clear? I hope you understood, beta. There are two terms we can find there by using your graph, slope and your area under the curve. Learn your formula, then with help of the formula only we can find there हमें क्या निकालना है, slope निकालना है या फिर area under the curve निकालना है. उस ग्राफ की हेल्प से ही हम फाइंड कर सकते हैं. So in next class we discuss their graph for the acceleration time graph. Then we will discuss some question related with it.